दिया चालू recording. Yeah, सुनाई दिया ना? Recording is in progress. Yeah. So, acha, by the way, how was your guest lecture today? Good, sir. Good. Understood? Yes. Yeah. So, molar conductivity is equal to the contribution made by, हाँ, आप statement लिख रहे हो. So, write down Kohlrausch law states that at infinite dilution, at infinite dilution, at infinite dilution, at infinite dilution, the contribution at infinite dilution, the contribution made by the cation, the contribution made by the cation and anion, the contribution made by the cation and anion, contribution made by the cation and anion is is independent and irrespective, is independent and irrespective of each other. The contribution made by the anion and cation is independent and irrespective of each other. Yes, कुछ समझ में आया? पढ़ो ये जरा. लिखा आपने पहली बात? Have you written it down? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes. So, Sairi, what is the meaning of this? What is the meaning of this statement? Can you read out? Sairi, could you read it out? Hello, Sairi, haven't you written it down? Sairi, are you behaving like Rehan? Can't hear you. You have unmuted yourself, but can't hear a single word. Okay, Abdullah, have you written it down? Abdullah? Yes, sir. Yeah, read it out. At infinite dilution, the contribution made by cation and anion is independent and irrespective of each other. Yeah, independent and irrespective of each other. कुछ meaning कुछ लग रहा है इसमें? कुछ समझ में आ रहा है meaning? Hmm. Yes, sir. थोड़ा बहुत. हाँ, थोड़ा बहुत क्या You can समझ में आया? explain. You can explain. I can explain. You want me to explain? Yes, Sairi, I Yes. can't hear you. कौन क्या हुआ? कौन से मैम वो छोटे वाले? कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक सेकंड देखो, पढ़ो ये. Yeah. So, बोलो. What did you understand by Kohlrausch law? Kohlrausch law says that at infinite dilution. थोड़ा सोचो कि at infinite dilution क्यों बोला? Why at infinite dilution? Why not at finite dilution?
y at infinite dilution, ladies and gentlemen, y at infinite dilution. ठीक है, अब ये y at infinite dilution, इसका रीजन बताता हूँ. NaCl है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा पानी डालो, डिसोसिएट हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग बंदा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na+Cl- पूरा डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएशन होगा, राइट. बट अगर एसिटिक एसिड है, राइट, तो इसके आयंस में को अभी देखो, मैंने 1 मोल यहाँ पर ऐड किया है, तो आई वेरी वेल नो दैट आई विल गेट 1 मोल ऑफ Na+ एंड 1 मोल ऑफ Cl-. पेन दे बेटा विद द कैप. या तो लास्ट टाइम आपको बताया था ये कि ये पेन मैंने आपको दिया, तो आपने इसको खोल दिया, राइट. तो आपके पास एक कैप है, एक पेन है, राइट. 2 यूनिट्स है आपके पास. इसका मतलब 2 पेन दिए क्या मैंने आपको? नहीं, दो नहीं, एक ही पेन दिया है, राइट. तो वैसे ही एक NaCl दिया, तो एक NaCl डिसोसिएट हुआ इनटू Na+ एंड Cl-. अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होगा. गेटिंग इट? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका प्रॉब्लम नहीं है. जब ये सोल्यूशन में जाएगा तो कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आई एम गोइंग टू गेट 1 मोल ऑफ Na+ आयंस एंड आई एम गोइंग टू गेट 1 मोल ऑफ Cl- आयंस. Yes or yes? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So then we are having acetic acid and here we'll be having acetate ions and H+ ions. But इसका issue है यार, क्या issue है इसका? कि ये ना है weak acid, right? Weak की औलाद है ये, weak acid. Okay. So weak acid का पंगा क्या है कि it is not going to dissociate. पहली बात तो resistant to dissociate. जैसे कुछ बच्चे नहीं होते कि resistant to study, पढ़ाई करना नहीं, गेम खेल, ये खेल, कुशलगिरी कर, रेहानगिरी कर, राइट, ऐसे करते रहते हैं लोग, राइट. तो रेजिस्टेंट टू स्टडी, तो वैसे ये रेजिस्टेंट टू डिसोसिएट, राइट. दिस इज व्हाट रेजिस्टेंट टू डिसोसिएट, पहली बात. और दूसरी बात, डिसोसिएट होने के बाद में इट विल रिकंबाइन अगेन टू फॉर्म एसिटिक एसिड. तो आई डोंट नो द कॉम्पोजिशन ऑफ एसिटेट एंड H+ आयंस, उसका कॉम्पोजिशन मेरे को अंधेरे में है, कॉम्पोजिशन आई डोंट नो. तो ऐसे की सिचुएशन में कोलरॉश टैलेंटेड आदमी, इंटरेस्टिंग, राइट. सो व्हाट डिड ही से कि चलो उसका अगर ये सेंटेंस निकाल दो ना, ये फ्रेज निकाल दो उसमें से, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो कोलरॉश लॉ कोलैप्स हो जाएगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो बाकी के साइंटिस्ट आके चिल्लाने लगेंगे, अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉलो नहीं कर रहा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉलो नहीं कर रहा, कोलरॉश लॉ, योर लॉ इज नॉट गेटिंग फॉलोड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसा बोलना शुरू कर देते उसको. तो वो भी बताया वो बाकी के साइंटिस्ट कैसे, राइट. तो उसके लिए उसने क्या किया, ही सेड दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब तुम तब तक उसको डाइल्यूट करते जाओ, तब तक पानी ऐड करते जाओ जब तक वो पूरा डिसोसिएट नहीं हो जाता. पानी ऐड करते रहो. क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है? आई डोंट नो. इनफाइनाइट गो ऑन एंड ऑन एडिंग वाटर. समुंदर भर के पानी डालो उधर, मेरे को लेना देना नहीं है, बट ये पूरा डिसोसिएट होने तक पानी ऐड करते. जब पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो आगे का लॉ विल बी ट्रू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट होता, तो उसके आगे क्या बोला है, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द cation, contribution made by the cation and contribution made by the anion irrespective of each other. अभी ये दोनों साथ में थे भाई, लेकिन एक बार डिसोसिएट हुए तो ना Na+ को लेना देना है Cl- के साथ, ना Cl- को लेना देना है Na+ के साथ, राइट. कुछ लेना देना नहीं है. एंड दे विल मेक देयर ओन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट concentration contribution towards the molar conductivity. They will contribute towards the molar conductivity independently, right. They will contribute towards the molar conductivity independently irrespective of its, क्या लिखा, irrespective of its coion. उसके साथ में Cl- था, Na+ था, उसको लेना देना नहीं, वो खुद का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करेगा. किसको को इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करेगा? टुवर्ड्स मोलार कंडक्टिविटी, राइट. और इसको ट्रू करने के लिए हम लोग ने क्या कर दिया, आगे एक सेंटेंस लगा दी, उसके पहले एक चीज लगा दी, क्या लगा दिया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ताकि इसके भी आयंस मिले, कंप्लीट डिसोसिएशन इसका भी हो और इसके भी आयंस मिले. तो इसके आयंस भी फिर हम लोग बोल सकते हैं द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द cation, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द cation एंड द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द anion, contribution made by cation and anion, contribution made by cation and anion. Okay. Yes, Yeah, sir. irrespective of its coion. अच्छा, irrespective of its coion के लिए और एक मैं बताता हूँ, राइट, कि अगर मतलब ये इसकी वैल्यू लिखूं NaCl की, सो द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय Na+ प्लस कंट्रीब्यूशन मेड बाय Cl-.
टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच अदर। अभी अगर ये KCl को KCl के लिए लिखूं मैं, तो इट विल बी द कंट्रीब्यूशन मेड बाय K प्लस कंट्रीब्यूशन मेड बाय Cl माइनस। Okay, contribution made by Cl minus. Okay, this is the contribution, right? Contribution made by K plus and Cl minus. Okay, तो बताना क्या चाहता हूं मैं कि ये जो Cl minus का जितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, उतना ही यहाँ पर भी कर रहा था, राइट? NaCl के साथ, जब Cl Na प्लस के साथ था तभी भी कंट्रीब्यूशन उतना ही कर रहा था, अब K प्लस के साथ है तभी भी कंट्रीब्यूशन उतना ही कर रहा है। इससे मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ? ये प्रूव करना चाहता हूँ कि Cl को फर्क नहीं पड़ता उसके साथ में Na प्लस है या K प्लस है, कोई भी रहो, वो उसका काम करेगा, वो उसका कंट्रीब्यूशन करेगा टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी, टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी। Are you understanding? Contribution made by the anion and cation individually, independently towards molar conductivity irrespective of its coion, उसके साथ में कौन है फर्क नहीं पड़ता। Did you understand this? Yes, sir. Yeah. Yes, तो sir. इसके Yes, sir. बेसिस पे, इसके बेसिस पे हमको क्या करना है? इसके बेसिस पे हमको अभी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ देखना है। क्या करना है? एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ देखना है। ओके, कुशल जरा लेटे लेटे देखो कौन एब्सेंट है, लेटे लेटे देखो Yes, जरा कौन sir. एब्सेंट है। हाँ, ओके, Sir, सब नाउ विल, present. नहीं सब नहीं प्रेजेंट है। Sir, 15 लोग हैं. नहीं तो 15 में से मैं एक हूँ, तो 14 ही है। कोई तो कोई एब्सेंट है, लेकिन देख लो, चेक कर लो, नोट डाउन कर लो ना, लिस्ट बना लो एक, ठीक है? लेटे लेटे, या सो Sir, ब्रिजेश, हाँ, वो सर एक नया स्टूडेंट था ना, कौन कौन? साहिल? so like साहिल है क्या? साहिल है मीटिंग में? नहीं, तो जरा ग्रुप में मैसेज डाल, उसको लिंक भेज उसको, फिर से उसको बोल ज्वाइन करे मीटिंग में। वो भी ठीक है. अवलिया है, So I किधर am है? in the meeting. किधर है भाई तू? दिखाई तो नहीं, इधर इनविजिबल है यार तू। रेज योर हैंड। हाँ, किशोर जगताप के नाम से ज्वाइन किया है, उस पापा हाँ, के नाम से sir, ज्वाइन किया है, इसके लिए समझ में नहीं और आया। एक और sir, कौन है? ब्रिजेश करके, ब्रिजेश ब्रिजेश करके. कोई नहीं, शोभित है वो। ब्रिजेश कौन है? हाँ, शोभित बाजपेयी है उसका नाम, ब्रिजेश कोई शोभित. नहीं है इधर। हाँ, Sorry. राइट। और Sir, और एक Ali is कोई absent. तो Ali. अली 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 मौला लिख के लो, एब्सेंटीज लिख के लो, बाद में मैसेज भेजेंगे। अभी भी मैसेज भेज दो, आयुष को बोलो, आयुष दोनों ग्रुप्स पे, आयुष जरा रिस्पेक्टिव मैसेजेस भेजो। रुचा है क्या मीटिंग में? चेक करो जरा। Yes, sir. हाँ, थैंक यू फॉर बीइंग इन द मीटिंग। अरे वाह, या सो हियर Excuse वी me, आर गोइंग टू सी, यस। sir, Sairi is saying that her mic is not working, so she'll not be ओ, able to उसने speak. मैसेज किया मेरे को, अच्छा, देख मेरे को भी भी लिया किया. मैंने। हाँ हाँ, तू कैसा कोऑर्डिनेटर है ना, लेटे लेटे, इसके लिए। Sir, अरे शर्म भी नहीं आ रही उसको, बोल रहा मैं लेटे लेटे सुन रहा हूँ। अरे डॉक्टर ने बोला, सर मैंने क्या किया? डॉक्टर ने बोला लेट के सुन, सर लेट के सुन नहीं बोला. फिर क्या बोला? अटेंड ही मत कर बोला। क्यों फालतू चीजें मत कर ऐसा, फिजिक्स केमिस्ट्री सर, मैथ्स बायो सब बकवास है, सर. वहम है, वहम, मोह माया है सब, राइट? नहीं सर. सो एसिटिक एसिड इज गिविंग यू एसिटेट प्लस H प्लस आयंस। अब ठीक है, लाइक वो जो कॉन्सेप्ट था उसका, किसका? कोलरॉश लॉ का, कि बोल रहा था कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन करो, लेकिन द इशू इज दैट दैट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, दैट्स नॉट अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, राइट? यूज इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब पानी में ऐड करते जाओ, भाई उतना बड़ा वेसल भी नहीं है मेरे पास, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहाँ से करूं मैं, राइट? सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, इट्स अ हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन। प्रैक्टिकली क्या करे, राइट? प्रैक्टिकली अभी क्या करेंगे, बहुत इंटेलिजेंटली काम करना है, राइट? सो इफ वी आर हैविंग लाइक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड आउट करना है, तो नॉर्मली क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय एसिटेट आयंस
plus contribution made by H plus ions. लेकिन इसमें इशू है एक। इशू क्या है? अरे भाई ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, ये लेक्चर में इसका ध्यान ही नहीं है, तो इसको क्या समझ में आएगा? वैसे ही इधर ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, राइट? ये देखो ना, इसके एरो देखो, राइट? तो आगे थोड़ा बहुत 10 में से 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, उसमें से भी एक वापस चले गए। जो जब डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, जब उसके आयंस ही नहीं बन रहे, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहां से फाइंड आउट करूं? उसका कंट्रीब्यूशन मेड बाय एसीटेट और H प्लस आयन कहां से फाइंड आउट करूं? हो ही नहीं रहा है वो। तो अब क्या करे? अब मोलर कंडक्टिविटी लेकिन फाइंड आउट करना है, तो वो भी कोलरॉच लॉ की मदद से फाइंड आउट करना है। जिद है तो जिद है, फाइंड आउट करना है। कैसे करे? एसिटिक एसिड को पकड़, उसको उसकी रिएक्शन कर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ये जो है एसिटिक एसिड, इट्स अ वीक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अपना स्ट्रॉन्ग की औलाद, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में भले जबरदस्ती ही रिएक्शन जितना बहुत हो गया उतना कर लेगा, एंड हियर आई विल बी गेटिंग सोडियम एसिटेट। हियर आई विल बी गेटिंग व्हाट? सोडियम एसिटेट, CH3COONA, CH3COONA प्लस H प्लस, CH3COONA, सॉरी क्या लिखा मैंने? H प्लस नहीं, क्या आएगा? H2O। H2. हाँ, CH3COONA मिल गया। तो अभी ये CH3COONA यहाँ पर ले लो, राइट? एंड ये जो सोडियम एसिटेट है, ये इसको डिसोसिएट करो वाटर में ऐड करके, तो अब ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। सर ऐसे कैसे? जब H प्लस आयन था उसके साथ तभी तो डिसोसिएट नहीं हो रहा था, अब Na प्लस है तो कैसे डिसोसिएट हो रहा है? देखना, ये Na प्लस कहां से आया है? ये Na प्लस कहां से आया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये है, ये Na प्लस है स्ट्रॉन्ग की औलाद, समझेंगे? ये Na प्लस है हमारा स्ट्रॉन्ग की औलाद, राइट? तो ये तो इसको छोड़ देगा, ये डिसोसिएट होगा कि नहीं पता नहीं, ये छोड़ देगा उसको Na प्लस, मतलब डिसोसिएट हो जाएगा, एंड यू विल गेट एसिटेट एंड Na प्लस आयंस। सो यहाँ पे ये जो डिसोसिएशन एरो देखो, एरो कैसा है? इट्स अ कंप्लीट डिसोसिएशन एरो, नॉट अ ब्रोकन एरो लाइक दिस, इट्स अ कंप्लीट डिसोसिएशन एरो। तो यहाँ पे भाई क्या हो गया? वी गॉट द वैल्यू फॉर contribution of acetate ions. What did we get? We got the value of contribution of acetate ions, और obviously contribution of Na plus ions भी साथ में मिल गया है, राइट? तो हमारे इक्वेशन में इसकी वैल्यू नहीं मिल रही थी, वो अभी मिल गई एसिटेट की, राइट? H प्लस की अभी भी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या करता हूं कि अभी I'll write an equation like this: contribution made by sodium acetate, molar conductivity of sodium acetate is the contribution made by CH3। थोड़ा टेढ़ा है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, राइट? डायरेक्टली फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एसिटिक एसिड तो नहीं मिल रहा है, तो सोडियम एसिटेट का ले रहा हूं पहले। सोडियम एसिटेट का ले लिया तो क्या मिला हमको? एसिटेट आयंस और Na प्लस आयंस का कंट्रीब्यूशन की वैल्यू मिल गई, रखो इसको ऐसे। फिर बाद में मेरे को बताओ कंट्रीब्यूशन मेड बाय NaCl। अभी NaCl कैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फटाफट हमको वैल्यूज मिल जाएगा, फटाफट डिसोसिएट हो जाएगा, तो विल गेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय Na प्लस प्लस कंट्रीब्यूशन मेड बाय Cl माइनस। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। देन कंट्रीब्यूशन, सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी HCl भी निकाल दो, तो HCl भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो विल गेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय H प्लस एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय Cl माइनस। ये भी हमको यहाँ पर मिल जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. Yeah. You did not ask me to spotlight the video. आप जब बोलते तो लोगों को स्क्रीन गायब हो जाता है उनके से, राइट? तो याद करो स्पॉटलाइट करने को, इन केस आई फॉरगेट, राइट? सो सोडियम एसिटेट हो गया, NaCl हो गया, HCl हो गया। अब वैल्यूज मेरे पास है, कंट्रीब्यूशन के वैल्यूज मेरे पास है। अब इंटेलिजेंटली क्या करूंगा कि इसको ऐसे लिखूंगा, कंट्रीब्यूशन। फाइंड आउट क्या करना था यार? फाइंड आउट हमको एसिटिक एसिड का करना था, इसके लिए ये सब हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें मेरे को एसिटेट और H प्लस आयंस चाहिए थे, तो अभी क्या करूंगा मैं ऐसे लिखूंगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ minus molar conductivity of NaCl, okay, minus molar conductivity of NaCl plus HCl plus molar conductivity of HCl. Are you listening to me? Plus molar conductivity of HCl, yeah, Cl Na, या हो गया, हमारा काम हो गया, ठीक है। ट्राइंगल देख ड्रॉ किया मैंने, ट्राइंगल नहीं यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी, ओके, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl।
वैल्यूज पुट अप करो, चलो ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप करो। मैंने ये इस तरीके से अरेंज किया कि चीजें कैंसिल होनी चाहिए, उस हिसाब से अरेंज किया। तो मोलार क्वांटिटी ऑफ सोडियम एसिटेट क्या था, कंट्रीब्यूशन मेड बाय एसिटेट। इसकी वैल्यूज तो मिल गई ना, सोडियम एसिटेट की मिल गई, एसिटिक एसिड की नहीं मिल रही थी, लेकिन सोडियम एसिटेट पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहा था, इसके लिए इसकी वैल्यूज मिल गई। सो कंट्रीब्यूशन मेड बाय एसिटेट आयंस प्लस कंट्रीब्यूशन मेड बाय Na प्लस आयंस माइनस कंट्रीब्यूशन मेड बाय Na प्लस आयंस प्लस कंट्रीब्यूशन मेड बाय Cl माइनस आयंस, प्लस प्लस है इधर, प्लस कंट्रीब्यूशन मेड बाय, इसकी वैल्यू क्या होगी HCl की, कंट्रीब्यूशन मेड बाय H प्लस प्लस कंट्रीब्यूशन मेड बाय Cl माइनस। और ये जो माइनस है ये अंदर तक, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर तक जाने वाला ये माइनस साइन। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस Na प्लस होगा, माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस कंट्रीब्यूशन ऑफ Cl माइनस होगा। तो जब माइनस Na प्लस है ये और प्लस Na प्लस है ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस Cl माइनस है और ये Cl माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब सारी चीजें कैंसिल होगी, बचा क्या है, एसिटेट और H प्लस आयंस बचा है। तो वही तो चाहिए था, राइट। कंट्रीब्यूशन मेड बाय एसिटेट आयंस एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय Cl माइनस आयंस, जो मेरे को सीधी तरीके से कंट्रीब्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड नहीं मिल रहा था, वो इस तरीके से मेरे को मिल गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes. Yeah. H plus. Any questions? Any questions? Sorry, Cl minus nahi, H plus, H plus. Sorry. Yeah. Yes, anybody who has not understood what we have done? Can you show the whole board once? Yeah, I'll try to. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो एकदम पहली बार अटेंड कर रहे हैं, बीच में कुछ लेक्चर्स मिस किए रुचा जैसे, तो उनको अभी थोड़ा तकलीफ होगी ये समझने में। तो रिकॉर्डिंग जरा सुन लो पहले के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। Sir, हाँ जी, sir, can you send me the Friday's lecture? फ्राइडे, ठीक है। And also, sir, coordination. या कोऑर्डिनेशन आपको, हाँ ठीक है, भेज देता। कोऑर्डिनेशन की भी है, मैंने भेजे ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन का, नहीं सर, आपने मेरे को पूछा तो बहुत नहीं बहुत भेजा पहले, आपने। बहुत पहले भेजा है, बहुत पहले। हाँ क्या सर? हम्म, ओके सर। देखो अगर नहीं मिलता है तो मेरे को बताओ, आई विल सेंड इट अगेन। यस सर। या Not a rash. That's कौन है ये, टीवी किसने लगा के रखा है? during the time of the recording. I think the trend that's going right. सोहम, पागल आदमी। सोहम, ये मीटिंग में कैसे क्या आ गया भाई? ये मीटिंग नहीं है तेरी। या ऊपर से टीवी बजा रहा है इधर, पागल। Yeah, done with this. Should I move on to the next concept? Yes, sir. Yeah. So ये है हमारा application of Kohlrausch law. Okay. So जिसकी conductivity find out कर नहीं सकते, वो find out कर सकते using what? Kohlrausch law. रेहान लिख रहे हो कि ऐसा recording के भरोसे बैठे हो? No, sir, I'm writing, sir. या कभी भी मैं आपको स्क्रीन अपना वीडियो ऑन करके दिखाने के लिए बोलूंगा, ओके? So, या चलो अभी नेक्स्ट लेना है, दैट इज विटस्टोन्स मीटर ब्रिज। ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? सी फिजिक्स में भी आता है ये विटस्टोन्स मीटर ब्रिज, बट ये विटस्टोन्स मीटर ब्रिज फिजिक्स का स्लाइटली डिफरेंट है, केमिस्ट्री का स्लाइटली डिफरेंट है। हमारे पास हालांकि यहाँ प्रॉपर डिवाइस भी है विटस्टोन्स मीटर ब्रिज का, ठीक है। फौजान ये दिखाओ जरा, आप स्टूडेंट्स को दिखाते हैं विटस्टोन मीटर ब्रिज, लेके आओ जरा, आराम से उठाओ,
हाँ वो नहीं, वो बेटा वो थोड़ी है मीटर ब्रिज, हाँ वो वाला, राइट. So this is something which is your Wheatstone's meter bridge, right? 1 मीटर का है, कैमरा में थोड़ा फिट हो रहा है कि नहीं? या सो दिस इज योर Wheatstone मीटर ब्रिज. और ये जो बीच में वायर्स लगे हैं, गिटार नहीं है ये बीच में वायर्स है, इसको हमको मतलब ये मीटर स्केल है 100 सेंटीमीटर का. और इसको हम लोग दो सर्किट्स कनेक्ट करने वाले, दिखना यहाँ से एक सर्किट कनेक्ट करने वाला है और यहाँ से एक सर्किट कनेक्ट करने वाला है, फ्रॉम दिस एंड एंड दिस एंड, राइट. तो ये सर्किट्स कनेक्ट होंगे ऐसे ट्राइंगल के फॉर्मेट में. अब दिखाता हूँ मैं बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ, राइट. प्लीज डू द ऑनर्स फौजान. या सो अब ट्राइंगल, ओके. दिखाई दे रहा है कुछ? Yes, sir. तो वो जो अभी Wheatstone मीटर ब्रिज दिखाया वो ये वाला पार्ट था. ये वाला मतलब कौन सा वाला? ये वाला, ये है आपका Wheatstone मीटर ब्रिज, नीचे है वो. और उसके ऊपर हम लोग ने सर्किट कनेक्ट किया है, बताता हूँ कैसे. वो जो वुडन प्लैंक था ना, वुडन प्लैंक अभी जो दिखा है ना Wheatstone मीटर ब्रिज का, तो वो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, ये वाला. ये कितना है? फ्रॉम 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर टू कितना? 100 सेंटीमीटर. क्योंकि Wheatstone मीटर ब्रिज मीटर कितने का रहता है? 100 सेंटीमीटर का रहता है, मालूम है ना, राइट. तो उसको मैंने यहाँ से सर्किट ज्वाइन किया यहाँ पे. ये हमारा लेफ्ट साइड का आर्म हो गया, ये राइट साइड का आर्म हो गया. अब राइट साइड वाले आर्म में मैं कनेक्ट करूंगा रियोस्टैट. क्या कनेक्ट करूंगा? रियोस्टैट. रियोस्टैट भी है हमारे पास, दिखाओ क्या? रियोस्टैट, देखो इसको बोलते हैं रियोस्टैट, राइट. रियोस्टैट क्या करता है? क्या करता है भाई रियोस्टैट? रियोस्टैट इट विल फिक्स पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस. हम लोग ये कॉइल है, इसमें नजदीक से देखोगे तो समझ में आएगा. ये कॉइल्ड वायर है ये, तो ये रेजिस्टेंस फिक्स करता है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस देता है. इसको यहाँ से इसकी वायर कनेक्ट करनी है, देख रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से मेरे को वायर कनेक्ट करनी है, दूसरी वायर इस पॉइंट से, या फिर इसमें को उतना आता नहीं फिजिक्स, राइट. तो कोई 2 पॉइंट से इसको वायर कनेक्ट करनी, दूसरी इसको, ये बीच में आ जाएगा ऐसा. समझ में आ रहे हो? Yes, समझ sir. में आ रहा है? ये Yes, बीच sir. में आ जाएगा, राइट. और ये इसको ऐसा आगे पीछे करेंगे, ऐसा लोड नहीं कर रहा हूँ, हाँ, आगे पीछे करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, राइट. अगर ये यूज नहीं करना है आपको, ठीक है, ये अगर यूज नहीं करना है तो ये करो फिर. मतलब एक तो रियोस्टाट लगाओ, नहीं चलेगा, नहीं अगर आपको अच्छा लगता है रियोस्टाट या आपके पास है नहीं, तो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओ इधर. रेजिस्टेंस बॉक्स में दोनों वायर इधर से कनेक्ट करेंगे, तो एक यहाँ से आने वाली है, यहाँ पे आने वाली, तो वो वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में अगर आप देखोगे तो फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस है. आपको कितने का रेजिस्टेंस लगाना है? 10 ओम का लगाना है तो की इधर डाल दो. 5 ओम का लगाना है, 10 और 5 दोनों, ये दो कीज लगा दी तो 15 ओम हो जाएगा. 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, राइट. आई होप यू नो दैट रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम. फिर 100 ओम का हमारा की चोरी हो गया है, राइट. देन देखो यहाँ पे 50 ohm, 20 ohm, 20 ohm, like that. Okay, are you understanding? So this is your resistance box, right? Yes. समझ में आया? So, Okay. हाँ, तो या तो इसके लिए एक हमको बैटरी भी लगने वाला है.
तो ये बैटरी क्यों लगता है मैं बताता हूँ। तो ये एक तो बैटरी हमारे वो मोटे वाले सेल रहता है ना, कॉलेज में वो यूज करते हैं, राइट। तो अगर मोटे वाले सेल नहीं है, मतलब हर बार वो सेल खत्म हो जाते हैं, बार बार कौन लेके आएगा, तो ये है, इसको बोलते हैं बैटरी, राइट। ये है हमारा बैटरी। तो इसको कनेक्ट करेंगे, ये सारा आपको फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा ये सारी चीजें, राइट। तो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, फिजिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री है ना, तो फिजिक्स थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है यहाँ पे, राइट। और उसको मेजर करना है कितना कर ये पोटेंशियल कितना है, तो ये है आपका गैल्वेनोमीटर, राइट। दिस इज व्हाट योर गैल्वेनोमीटर टू मेजर द पोटेंशियल, ओके। तो खैर ये सारी चीजें, देन तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। मान के चलो कि हम लोग 10 ओम्स का रेजिस्टेंस फिक्स कर रहे हैं, आप कितना फिक्स कर रहे हैं, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, राइट। देन यहाँ पे एक सोल्यूशन रख दिया है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन स्टार्टिंग में, या एक काम करता हूँ कि NaCl का सोल्यूशन इधर रख देते हैं, राइट। इट्स नॉट स्टैंडर्ड, NaCl का सोल्यूशन यहाँ पे रखा है, ओके। तो अभी ये सोल्यूशन का मेरे को तीन चीजें फाइंड आउट करनी। कौन से सोल्यूशन की, ये NaCl की सोल्यूशन की तीन चीजें फाइंड आउट करनी। क्या फाइंड आउट करना है, B इज इक्वल टू KR। लाइंस क्यों आ रहे ऐसे, नहीं मैं देखता हूँ बाद में, हाँ। B इज इक्वल टू KR, राइट। B इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। K इज योर कंडक्टिविटी, वो भी फाइंड आउट करना है। R इज योर रेजिस्टेंस। सर कैसा होता है ना, तीन में से दो फाइंड आउट करने होते हैं, तीन में से दो फाइंड आउट करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन में तीनों के तीनों अननोन है। And with the help of Wheatstone meter bridge, what we are going to do, we are going to find all three, right? With the help of this Wheatstone meter bridge, we are going to find out cell constant of this cell, then conductivity of this cell, and resistance also of this cell. तो इसको मैं याद कैसे रखता हूँ पता है, जैसे आप कभी ट्रेन में जाते हो, तो ट्रेन में क्या होता है ना कि इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद जाना है तो HYD लिखते हैं, और दिल्ली जाना है तो DLH लिखते हैं, महाराष्ट्र जाना है MAH ऐसा लिखते हैं, राइट। तो ये शॉर्ट फॉर्म। वैसा है बीकानेर नाम का एक शहर है राजस्थान में, तो BKR ऐसा याद रखो, बीकानेर याद रखो। सेल कांस्टेंट बीकानेर, B इज इक्वल टू KR। एक पिक्टोरियल मेमोरी में दे रहा हूँ अभी, देखो सब इमेजिन हुआ ना, ट्रेन वगैरह आंखों के सामने आए कि नहीं, तो वो भी एक पिक्टोरियल मेमोरी के साथ कनेक्ट हो गया आपका। P इज इक्वल टू KR, राइट। सो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। तो ये मैं आपको, अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो ये मैं आपको कल तीनों भी, ये तीनों भी हमारे पास अननोन है, तीनों भी हम लोग फाइंड आउट करके दिखाएंगे कल, राइट। डायग्राम अगर आपने निकाला है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल दोबारा आपके लिए निकालता हूँ, राइट। गुड इवनिंग एंड thank you all of you. I hope you have understood what we have done today. Yes, sir. Yeah, good evening and thank you all of you. Good evening and thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.